Good morning to everybody. Dear students, today we will go to start chapter 1 of plus 2 second year science subject botany, that is reproduction in organisms. I am Dr. Arun Kumar Rath, lecturer in botany, Sri Jaydev College of Education and Technology, Bhubaneswar. Anyhow, before going to the details, we should know the exact syllabus. So, in botany or zoology, we are having the syllabus and the long questions should be asked from the portion underlined in the syllabus. And if we go to the syllabus, actually what happened? There is no chance of underline in any part. So, totally from this chapter 1, that is reproduction in organisms, no long question will be asked in Council of Higher Secondary Education examination, or we can say plus 2 board examination. So, now we will go to the next, that is what type of question or what type of probable question they will ask. If we will go to the question, as there is no underline portion, जेहेतु एथिरे कौनसी अंडरलाइन नहीं, तेणु ए पार्ट रु कौनसी लॉन्ग क्वेश्चन आसीबो नहीं. सो वी हैव रिटन नो लॉन्ग क्वेश्चन. देन वी विल आस्क, और द काउंसिल विल आस्क शॉर्ट नोट्स, differences and also the objective question, multiple choice or underline errors. So, these are the probable questions, that is asexual reproduction, binary fission, budding in yeast, sporulation, gamete formation, fragmentation, stolen rhizome, micropropagation, cutting, layering, grafting, गुटी. या विषय में डिटेल्स पढ़ा, किसी व्यस्त हबार नहीं. तापर आम डिफरेन्सेस आसवा बेटा, asexual and sexual reproduction, binary fission and budding, zoospore and zygote, stoxion. तो यही टाइप रो क्वेश्चन एथिरे आसीबार अछि. तो accordingly we should prepare, accordingly we will go for the study of this lesson or the chapter. बर्तमान आसिला रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म माने कौन. जदि आमे जिबा रिप्रोडक्शन प्रोसेस, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? The reproduction is a process unique feature of all living organism. प्रत्येक living organism रा reproduction है unique feature. Clear? तो यदि reproduction unique feature, then what has to do? और reproduction ने कौन हो अच्छी? The organism is able to reproduce its own type. organism टा निज type को से reproduce करिबो. So जो नुआ जिनिस तैयारी है ताकू आमे कहबा ऑफस्प्रिंग्स. एवं जदि प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन जिबा, बेसिकली टू प्रोसेसेस, दैट इज asexual reproduction and sexual reproduction. And as per the council syllabus, only in this part we will go details about reproduction, that is asexual reproduction methods in animals and in plants, but according to the council syllabus. तो प्रथमे मु तुम मानकु syllabus देखैतिली, से syllabus अनुसारे आमे एथिरे आसीबा. तो इंग्लिश रे बर्तमान लेखा गला, लाइफ स्पान इज द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. आफ्टर द डेथ of the living organism also, the population is maintained by the process of, that is called as reproduction. So, reproduction is a biological process by which an organism produces its offspring of its own type or similar to itself. The offspring grows, matures and in turn produces new offspring. Reproduction is essential for the continuation of the line of succession and maintenance of a particular species in the biosphere. So, reproduction is very essential feature
of living organism by which the living organism has to produce its own type. तो मु तुम मानक कही दीटा मेथड रिप्रोडक्शन रही गोटे है सेक्सुअल आउ गोटे है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एवं भल कि पिले जान सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बटानी रे पढ़ा जीवो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एवं जूलॉजी रे पढ़ा जीवो ह्यूमन रिप्रोडक्शन तेनु काउंसिल सिलेबस रे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द कोनोसी डिटेल्स एथिरे दिया जाय नाही ओनली द डेफिनिशन आमे टिके जानिबा तो एनी हाउ रिप्रोडक्शन इज टू टाइप्स लेखा जाय ऑलरेडी sexual reproduction and asexual reproduction. So now the question is, what is the basic difference between sexual and asexual? Now sexual reproduction is generally taking place among the two parents. So in maximum cases it is biparental. Bi means two, parent means parents, kimba father, mother, etc. So it is biparental, it is mostly biparental, involves meiosis, gamete formation and usually fertilization, also introduces genetic variation in the offsprings and play a role in evolution of species. So anyhow एटी कौन होची ना involves meiosis of meiosis means reduction division and after reduction division we will get the gamete, so that is called as gamete formation and generally genetic variation we will notice because there is a process called as crossing over during the time of gamete formation and you know that crossing over generally taking place in the Pachyteny stage, particularly of meiosis 1 of the prophase 1. So ये सब जिनिस we will get also new species and that process is called as evolution. So now we will go details about asexual reproduction. So already मु कहि देछि जे sexual reproduction सबु बेले दीटा parent भितरे हबो किंतु asexual reproduction generally most maximum cases it should be taking place in a parent. तो गोटे parent asexually reproduce करि पारिबो तेनु एठी लेखा गला the reproduction in which an offspring is produced by single parent without the fusion of gametes is called asexual reproduction. तामाने sexual reproduction ने हमर दीटा gamete formation हबो male gamete and female gamete they will have to fuse किबा मिसिबे किबा amphimixis किबा syngamy हेमे तापर दीटा gamete मिसिला परे आमे पाइबा zygote. तो zygote is diploid, gametes are haploid. तो male gamete, female gamete they will fuse or they will mix and producing a structure called as zygote. So zygote is diploid, but in asexual reproduction there is no chance of gamete formation or no chance of zygote formation. So a single parent produces offspring and the offsprings are exact copies of their parents. The offsprings are genetically and morphologically similar and are referred to as clones. So the offspring which will produced through the asexual reproduction are genetically similar and called as what? Called as clones. So now we'll go to important features of or important characteristics of asexual reproduction. जदि हमें important characteristics जिबा ताले first point लेखा जाइछि a single parent is involved and so no fusion of the gametes. Second point is only mitosis takes place with rapid multiplication. So in asexual reproduction there is no chance of formation or occurrence of meiosis. तो asexual reproduction में meiosis हबार chance नहीं. तो now we'll go to the difference. मेरे बेले परीक्षा रे पचारुची हमर asexual versus sexual reproduction. तो तार हमें difference जिबा. तो difference हमें देखिबा offsprings are produced by single parents. एटारे तुमे जानिଛ offsprings are generally produced by two individuals but sometimes by single parents in lower animals. New individual develops from one cell or a vegetative body part of one parent and new individual develops from zygote or fusion product of two gametes which may or may not be produced by two parents.
So offsprings are genetically identical to their parents. So offsprings are definitely genetically identical in asexual reproduction, whereas in sexual reproduction they are not genetically identical. Involves only mitotic division. एथिरे केवल mitotic division होची. एथिरे involves meiosis at one or the other stage. तो ये meiosis generally हुए. It does not require the formation of sex organ. In asexual reproduction, there is no chance of formation of sex organ, whereas in sexual reproduction, there is formation of sex organs. It does not introduce variability, hence has no evolutionary importance. एथिरे कौनसी change किंबा variation आसीबो नहीं. यदि variation न आसिला ताहले कौन हम पिले ना कौनसी evolution किंबा new species origin हबार chance नहीं. किंतु it introduces variability and is hence of evolutionary importance. So sexual reproduction providing evolutionary importance, whereas asexual reproduction never providing the evolutionary importance किंबा new species origin करबा पाई से कदापि दब नहीं. तो नेक्स्ट आम गोटे चार्ट करूँ इट जे पर्टिकुलरली आम ताको कहूँ जनरली ए summarize point or a flow diagram or the flow chart. सेतरे देख एटा एक्चुअली सिलेबस अनुसार करा जाइनी एक्स्ट्रा किछि लेखा जाइछि किंतु हमर जेति कि सिलेबस रे अछि हमें पढिबा. तो ये हला कोन एसेक्सुअल एपटे हम देजु सेक्सुअल. तो सेक्सुअल मध्ये एटी प्लांट्स रे हबो एटी एनिमल्स रे हबो. तो प्लांट्स रे हमें कहिबा मेल टाको कहिबा एंड्रोसियम, फीमेल को कहिबा हमें गाइनोसियम एवं एंड्रोसियम भितर तुमे जानि छ पोलन ग्रेन थिबो किंबा मेल गेमेट आसीबो. गाइनोसियम भितर ओव्यूल थिबो किंबा एम्ब्रियो सैक आसीबो. एवं एनिमल्स रे आसीबो टेस्टिस, मेल मानकर ता भितर रहइबो स्पर्म्स एवं फीमेल मानकर आसी ओवरीज एवं ताको हम कहबा ओभा. तो एई जे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्ट एई पार्टी बॉटनी सर माने पढेबे एवं ए पार्टी जूलॉजी सर माने फ्यूचर रे तुमको पढेबे नेक्स्ट क्लास मानकर पढा जिवो. तो आमे जिबा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एवं एटी गुड़ाए जिनिस लिखिचु किंतु आम सिलेबस अनुसार जेतिकी अछि आमे सेतिकी जिबा. तो एथिरे देख लेखा जाइछि गुटे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आउ गुटे मध्ये लेखा जाइछि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. किंतु किछि जिनिस अछि देख से यूनिसेलुलर रहिछि एवं मध्ये मल्टीसेलुलर मध्ये रहिछि. एज फॉर एग्जांपल किए ना बॉडिंग आल्सो फाउंड इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम, बॉडिंग इज आल्सो फाउंड इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम. तो ये गोटे जिनिस देख इट इज कॉमन टू बोथ यूनिसेलुलर मध्ये बॉडिंग देखा जिवो, मल्टीसेलुलर मध्ये बॉडिंग देखा जिवो. तो एनीहाउ दिस इज ए फ्लो चार्ट of the details asexual and sexual reproduction and we will cover the asexual reproduction only. Next amar syllabus अनुसार हम आसीबा. तो asexual reproduction amar रहिछि binary fission. तो बर्तन बुझिबा बाई माने कोन ना बाई माने हला टू, फिजन माने कोन ना भांगिबा. तने गोटे जिनिस दी भागरे विभक्त हबो. मु बर्तन गोटे साबुनटा आनिबी, साबुनटा कौन करी ना छुरी रे काटी देली अधा करिकी. तो ये गला फिजन किंबा दीटा बाहरला बाइनरी फिजन. मेंचाए यदि पीस कली ताले कौन हबो दैट इज मल्टीपल फिजन. किंतु आमर सिलेबस रे अछि बाइनरी फिजन. तो बाइनरी फिजन माने एट ए टाइम वन सेल और वन स्ट्रक्चर हैज टू डिवाइड इक्वली and produce two cells or the two structures. तो एठी मध्य बाइनरी फिजन गोटे जनरली इरेगुलर मैनर हेई पारे, गोटे ट्रांसवर्सली हेई पारे, एई टाइप रो कटिके ट्रांसवर्सली हेई पारे, गोटे एई टाइप रो कटिके हमर कोन हेई पारे ना तुमरो लंगिट्यूडनल हेई पारे एवं मेंचाए कटिला तो ताको मल्टीपल कहिबु. तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन एंड बाइनरी फिजन मे टेकिंग प्लेस इन प्रोकैरियोट्स as well as also eukaryotic organism. And binary fission is a very common feature of तुमे जानि छ प्लस 2 फर्स्ट ईयर पढ़ा जाइथिबो इन बैक्टीरिया. And binary fission also found in eukaryotes like amoeba, euglena, paramecium and so many organisms like serratium etc. No ता विषय हम टिके इंग्लिश से जानिबा. So binary fission is a process of asexual reproduction in which the parent organism divides into two halves and each half forming an independent organism. And the binary fission involves mitosis in eukaryotes
and amitosis in prokaryotes or in bacteria. The resultant offsprings are genetically identical to the parent and to each other. So they are genetically identical. Depending upon the plane of division, ମୁଁ already तुमको कहिछि, there is simple है पारे, longitudinal है पारे euglena रे, transverse है पारे paramecium रे, एवं oblique किंबा तेरछा है पारे serratium. तो यही टाइप रो मध्य विभिन्न टाइप रो बाइनरी फिजन अच्छी एवं आमर एटा गोटे भेरी कॉमन क्वेश्चन 2.5 मार्क्स शॉर्ट नोट. तो शॉर्ट नोट जदि से आसीबो आमे याको आराम से लिखि पारिबा, किछि असुविधा नाही. तो बर्तमान में चित्र देखिबा हाउ इट लुक्स. नम अमोइबार देखिबी, देख एई टाइप रो सिंपल प्रोसेस रे गोटे थिला अमोइबा, तार नाली डाला न्यूक्लियस एवं डिवाइड हे गला न्यूक्लियस एवं दीटा है कि बाहरिला. So there are two daughter cells are produced from a single amoeba. So that is two dita theory hela. So that is called as binary fission in amoeba. अन्य मानकर आमे देखिबा, तो सेही अमोइबार मध्य आउटे नैछि ऊपर पटे देख, से मध्य दीटा हला. एटार आमे नेलु कोन ना यूग्लेना. तो यूग्लेना गोटे जानिछ, एटा गोटे प्लांट किबा एनिमल दीटा भाग रे रहउछि ट्रांजिशन स्ट्रक्चर एवं यूग्लेना मध्य देख दीटा हे गला एवं किमितिका होउछि ना दैट इज ए लॉन्गिट्यूडिनल. लॉन्गिट्यूडिनल माने एटा इमते रहिला एपटे मझिरे चिरा जिवो. तापर थर्ड हला पैरामेसियम हमें नैछु. पैरामेसियम जनरली स्लीपर शेप्ड. ये किमितिका हला ना इट जनरली प्रोड्यूस बाय ट्रांसवर्सली. सो पैरामेसियम ट्रांसवर्सली, यूग्लेना लॉन्गिट्यूडिनली एंड अमोइबा जनरली वेरी सिंपल मेथड. यही प्रोसेस रे हमर होउछि, मते लागुछि डायग्राम रो बुझी पारिथिबो. तो नेक्स्ट आमे जिबा स्पोरुलेशन. तो स्पोरुलेशन जिबा पूर्वरु आमे जानिबा व्हाट इज स्पोरुलेशन. ए वर्ड टाकु भांगिला परे स्पोरुलेशन ता माने एट देखो गोटे जिंस अछि स्पोर. सो मेनी नंबर ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड. सो इट इज कॉल्ड एज व्हाट स्पोरुलेशन. तो स्पोर गुडा किमिति प्रोड्यूस हेबो ना, दे शुड बी प्रोड्यूस एसेक्सुअली. सो स्पोर जहा भितरे रहिबो, द स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्पोरांजियम. सो दिस इज ए वेरी कॉमन फीचर इन algae, fungi. एमानंकर स्पोरुलेशन इज वेरी कॉमन और लोअर प्लांट ग्रुप्स रे इट इज वेरी कॉमन. याकु छाडला परे आल्सो आ गुटे टाइप रो स्ट्रक्चर हमें देखुछु, द स्पोर्स हैविंग द फ्लैजेला. So that is called a zoospore, and zoospore is a very common feature in lower fungi and maximum algal members. तो एमानंकर देखा जाए particularly zoospore condition हमको देखा जाउछि. So this is a very general process of reproduction in organism like algae and fungi. मु already तुम माननको ओडिया रे कहिथिले. Second point, almost all algae produce motile asexual reproductive units called zoospore, and zoospores are generally having cilia or flagella, and they can float freely in the water from one part to another part. The zoospores are endogenously born. That means they should born in a structure. तो जो structure भितर grow करिवे zoospore से माननको आमे कहबा sporangium, or we can say zoosporangium. Lower fungi like Saprolegnia reproduced by zoospores, but higher fungi like Aspergillus, Penicillium, etc. possesses a structure, non-motile structure called as conidia. These are exogenously, so zoospores are endogenously structured or endogenously produced, and conidia are exogenously produced, means they are produced outer और बाहर पटे जदि हेला ताकू हमें कहबा एक्सोजिनस, भीतर पटे जदि हेला ताकू हमें कहबा एंडोजिनस. तेणु एंडोजिनस रे जनरली डिस्पर्सन कि स्पोर गुड़ा विच्छुरित होगा टिके डिफिकल्ट, किंतु एक्सोजिनस हेले दे कैन स्प्रेड बाय द एक्सटर्नल एजेंट लाइक एयर, वाटर एक्सेट्रा. तो सेमानक द्वारा से गुड़ा सब विच्छुरित हो पारिबो. तो सेमानक स्ट्रक्चर हमें देखिबा. एपटे जो स्ट्रक्चर देखिए दैट इज सेप्रोलेगिना रेडला जूस्पोर. गोटे पटे रहिछि टिनसेल फ्लैजेला, गोटे पटे रहिछि व्हिप्लास फ्लैजेला, गोटे पटे रहिछि स्मूथ फ्लैजेला, आ गोटे रहिछि जनरली रफ टाइप. सो इट इज ए
जूस्पर्स ऑफ सेप्रोलेग्निया ये गोटे स्ट्रक्चर कनिडिया एवं कनिडिया जनरली आम कहूँ पेनिसिलियम कि आस्पराजिलस ए टाइप स्ट्रक्चर देखा जाए सो दीज आर द एक्सटर्नल स्पोर एंड जूस्पर जनरली प्रोड्यूस इन स्ट्रक्चर ये मेंचाए जूस्पर ता भितर रही एवं ता ना आम कहबू जूस्परांजियम एवं कनिडिया जहाँ ऊपर डेभलप करिबो सेमानंकर ना हैला कनिडियोफोर PHORE एवं एटा देख जनरली दांत काठी जो दांत काठी शाल दांत काठी घसुथुब से ब्रश टाइप एटा जनरली देखा जाए एवं जहाँ ऊपर कनिडिया डेभलप करिथिबो से स्ट्रक्चर को आमे कहूचु स्टेरिगमाटा से स्ट्रक्चर कौन कहूचु पिले ना स्टेरिगमाटा एनी हाउ दीज आर द जूस्पर्स ऑफ सेप्रोलेग्निया एंड कनिडियोस्पोर्स ऑफ पर्टिकुलरली आस्पराजिलस और पेनिसिलियम। तो नेक्स्ट आमे जीवा बर्तमान बॉडिंग। तो तुम्हें निजे जानिछ बॉडिंग कहला माने आसीगला हमर ईस्ट एटा फर्स्ट ईयर पढ़ा जाइथिबो। तो बॉडिंग कौन ना बॉडिंग इज ए वेरी कॉमन फेनोमेनन इन ईस्ट एंड बैक्टेरिया देखा जीवो बाइनरी फिशन। बॉडिंग रे कौन हबा ओडिया रे बुझ ना इंडिविजुअल सेल जो अच्छी ईस्ट है यूकैरियोटिक सेल गोटे एंड रे कौन हम ना इट गेट स्वेल सी टे गोटे पटे फुली जीव फुली गला पर देख न्यूक्लियस जो थिला ये डिवाइड होगी अधा ता भीतर पलई गला एवं तापर कंस्ट्रिक्शन जो है डीप हो गला अर्थात कटिवा टाइप आसीगला एवं फाइनल देख कटिकी सेपरेट हो गला जो कटिकी सेपरेट हो गला लास्ट वी गट टू स्ट्रक्चर सो गोटे स्ट्रक्चर पेरेंट सेल रु आमे पाइलु अगेन पेरेंट सेल विथ द बॉड सो दैट इज कॉल्ड एज बॉडिंग। सो ये मध्य गोटे सर्ट नोट आसीबो सर्ट नोट आमे केवल दुईटा पॉइंट लिखिबा एवं मध्य लिखिबा डायग्राम टी करिबा। तो बॉडिंग कौन ना फॉर्मेशन ऑफ ए डॉटर इंडिविजुअल फ्रॉम ए स्मॉल formation of a daughter individual from a small projection the bud and arising on the parent body is called as budding. It occurs in some protozoans and certain lower animals such as sponges. Scypha gote scypha re madhya eta dekha jauchi. So sponges it is also available. Coelenterate hydra also available. Annelids that is Silis yeast and tunicates like salpa. So anyhow budding is a very common phenomenon in the east. जेते बेले एग्जाम रे पचारिबो तो तुमे माने बॉडिंग रे पर्टिकुलरली डायग्राम टी दबो एवं ईस्ट कॉमन एग्जांपल यू शुड राइट। तो ये हला हमर बॉडिंग मु भाबुची आराम से बुझी पारुतबो कना डायग्राम हम देखौछु एवं पाठ मध्य नोट आकार लिखा जाइछि। तो नेक्स्ट हमें जिबा सिलेबस अनुसार हमर रहिछि गेम्यूल फॉर्मेशन। तो एतिके मन रख गेम्यूल जिबा पूर्व हमें जानिबा व्हाट इज गेम्यूल। So gemule is otherwise called as internal bud. So भितरे जदि बॉडी भितरे कौन सी स्ट्रक्चर तैयारी हैला ताकू हमें कहबा gemule. So gemule is the internal buds. तो सेठी हमें लिखा जाइछि तो internal bud माने endo, external माने exo. So the gemules are the endogenously formed internal buds in fresh water sponges. As for example, spongilla and few marine sponges except cycon. Marine means जो माने समुद्र रे रहिबे, fresh water माने लुण नथिबा पानी मधुर पानी रे जो माने रहिबे, and buds are formed within the body and that is called as gemule. तो ये gemule को देखो ये एटा gemule रहिछि एवं बॉडी भितरे तयारी होछि एवं गोटे छोट ओपनिंग अछि ताको हम कहू माइक्रोपाइल या भितरे गुडाए सेल तयारी हैला ता नाला आर्कियोसाइट्स एवं आर्कियोसाइट्स जनरली कवर करके रहउछि इनर कवरिंग आउटर कवरिंग एवं आउटर कवरिंग रे निडल लाइक स्ट्रक्चर देखा जाए ताको हम कहबा स्पिक्यूल्स। सो एनीहाउ दिस इज द इंटरनल बॉडी इज कॉल्ड एज गेम्यूल्स एंड वेरी कॉमन इन जनरली पर्टिकुलर इन द स्पंजेस। सो गेम्यूल्स कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ग्रुप्स ऑफ सेल्स मुझे डायग्राम रे देखैले लिखा जाइछि आर्कियोसाइट्स enclosed by a protective coat. So such type of structure is formed during unfavorable condition. तामाने जेते बेले टेम्परेचर बढ़ी जीवो पानी शॉर्टेज हे जीवो सॉल्ट रे अमाउंट बढ़ी जीवो सेही टाइम रे कोन हबो ना जनरली तुमर गेम्यूल फॉर्मेशन हबो। सो जेते बेले नॉर्मल कंडीशन पळे आसला फेवरेबल सो ड्यूरिंग फेवरेबल
conditions, the mass of archaeocytes comes out through micropyle and forms a new colony. So during favorable condition, the mass of archaeocytes comes out through micropyle. या देगी बाहरी जीव micropyle देई and forms a new colony. तो एमाने गोटे गोटे बाहरी बे, again they will form a new colony. So that is your gamule formation. So now we'll go to the fragmentation. बर्तन fragmentation, fragment छोटो छोटो खंड को आम कह फ्रागमेंट एटा गोटे देखु मुझे काटिदेवी खंड खंड करी तो ये फ्रागमेंट हो गला कि फ्रागमेंटेशन इज ए नेचुरल प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन पर्टिकुलरली इन फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म लाइक algae एंड फ्यू सिंपल फंगस तो एमानकर जनरली फ्रागमेंटेशन हुए किंतु हायर लाइक आमर कि मामल्स मानकर फ्रागमेंटेशन हम ना तो लोअर एनिमल से माने कौन हम ना फ्रागमेंटेशन है पर इंडिविजुअल फ्रागमेंटेड पार्ट acting as new individuals or new organism. तो केतले फ्रागमेंटेशन हम धर बर्तन algae गुडा filamentous algae बर्तमान रही पानी रे अच्छी पानी स्रोत रही तो स्रोत से माने गड़ी गड़ी गला बेले पत्थर रे बाड़े पारती गछरे बाड़े पारती माटी सरफेस रे बाड़े पारती बाली रे बाड़े पारती तो ये सब कह जाए तांकर एक्सीडेंटल सो जिते एक्सीडेंटल ब्रेकेज हम से माने जनरली भांगी जिबे भांगी गला परे नुआ नुआ स्ट्रक्चर देखा जिबे एटा मध्य हमर हाइट देखा जाउची हाइड्रा रे मध्य वेरी कॉमन देखा जाउची नियो देखिबा स्पंजेस रे मध्य देखा जाउची सो फ्रैगमेंटेशन इज ए टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन occurs in particularly most of the lower plants belonging to algae fungi and bryophytes as well as many highly developed angiosperms and also found in lower animals like sponges, hydra, etc. So this is a process of accidental breakage vegetative cells and development of the fragmented or broken parts into new organisms. The accidental breakage may occur due to wind, water current, or injury caused by animals while feeding. In economically important horticultural crop plants or general crop plants, human being uses this method of segregating plant parts for his own benefit. तो मनीष माने मध्य सेमानंकर निजर जेतिकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करबा पई वी आर गोइंग फॉर द artificial fragmentation and particularly available in कौटी ना particularly in horticultural crops and also in few other crops. तो ये है हमर fragmentation तो तार मध्य हम टिके डायग्राम देखिबा तो एटी तमे नेइछु देख गोटे एरा हैला तुमर डायग्राम स्पाइरोगायरा सो इट इज ए डायग्राम ऑफ ए स्पाइरोगायरा तो स्पाइरोगायरा तुमे जानि छ इट इज ए फिलामेंटस algae एवं बिलोंग्स टू क्लोरोफाइसी सी देखो तीन गड़ हे गला तीन खंड हे गला खंडे खंडे एवं खंडे खंडे हैला परे इंडिविजुअल वन गिव्स राइट टू अगेन जहा थिला सेही टाइप रो हैला तो एटा देखा जाय छ हाइड्रा हाइड्रा देखो मझिरु कटि गला परे से माने फेर आगरे सेम नुआ टाइप रो तयारी हे गेले फेर बड़ हे के तयारी हे गला किंतु मनुष्य यदि मुंड कटि जो सेही टाइप रो हे परिबो नाही किंतु सो दीज आर द लोअर एनिमल्स वेयर फ्रैगमेंटेशन इज वेरी कॉमन फीचर ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहीं कि से माने सो मेनी एडवर्स सिचुएशन कि abnormal कंडीशन किंबा अनफेवरेबल कंडीशन ने से माने जनरली रहउचंती सो नेचर सही टाइप तयारी करिछि दे विल ग्रो इनटू न्यू वन आफ्टर द एक्सीडेंट सो दैट इज कॉल्ड एज फ्रैगमेंटेशन. तो बर्तमान आम जा वेजिटेटिव प्रोपगेशन ये जनरल पार्ट गला आउ गोटे पार्ट आम जानिबा लास्ट पार्ट यार अच्छी वेजिटेटिव प्रोपगेशन. तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन जदि आम कहबा it may taking place in natural way or may taking place in artificial way. तो natural way रे मध्य हमें vegetable propagation करि पारिबो artificial करि पारिबो. तो बर्तमान मु देखिबी how will do the natural way that will read तेनु बर्तमान जानिबा जे what is vegetative propagation vegetative part कोन propagation कोन हमें जानिबा. So vegetative part means they are devoid of any sex organs. तो मु कहि पारिबी प्लांट रो रूट इज ए वेजिटेटिव पार्ट यस स्टेम इज ए वेजिटेटिव पार्ट
लीफ इज ए भेजिटेटिव पार्ट। बर्तमान आम आलू खाऊचु बर्तमान देखिए वर्षा दिन बर्तमान चली किंबा ठीक दुर्गा पूजा परे परे शीत दिन आसला बेलू बर्तमान आलू बर्तमान ठू आरंभ हो गला आम कहूँ ओडिया रे आलू गजा हो गला। जदि गजा हो गला माने दैट इज ए एक्सिलरी बर्ड आम बोटानिकल टर्म रे एक्सिलरी बर्ड एवं सेटा बाहर नोड रु तो सो एक्सिलरी बर्ड जो बाहरिला सी कौन हम ना तामें काटिकी माटी पोती दबा से गछ बाहर एगेन से गचर गोटे गचर 4-5टा 2टा 3टा आलू तैयारी हम। तो ये जब नेचुरल प्रोसेस रे आम आलू रखी था न आनी था खाइबापी से रही था फेर पची था फेर से मेंचाए गछ होता फेर सेमती मल्टीप्लिकेशन करें आलू जमीक हूँ अदा हलदी रसुण तो ये टाइप हो पार तो से जिनस आम देखा। सो इट इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम वेजिटेटिव यूनिट्स सच एज बर्ड्स माने फूलर कड़ हो पारे कि फूल नथिबा कड़ हो पारे ताको आम कहबा बर्ड्स। ट्यूबर्स ट्यूबर्स मीन्स पोटैटो राइजम्स मीन्स अदा एक्सेट्रा एंड द वेजिटेटिव यूनिट्स आर कॉल्ड प्रोपाग्यूल्स। तो जो स्ट्रक्चर से मल्टीप्लाई करिबो से स्ट्रक्चर मान को आम कहबू प्रोपाग्यूल्स। So methods of vegetative reproduction further divided into two types. I already कही they are generally divided into two types, that is natural and artificial. So natural and artificial. तो प्रथम हम देखा नेचुरल किमिति होची नेचर रे किमितिका ऑटोमेटिक होची। तो आर्टिफिशियल माने तुम्हें जानी थिबो आर्टिफिशियल माने हला नेचुरल हला प्राकृतिक आर्टिफिशियल अप्राकृतिक किंबा कृत्रिम। तो एनी हाउ नेचुरल प्रोसेस रे ऑटोमेटिक हम एवं आर्टिफिशियल आसिला माने ह्यूमन बीइंग रो इन्वॉल्वमेंट दरकार। तो मनीष सब लगी कौन करुच्ची ना आर्टिफिशियल जिनस तैयारी करुच्ची। तो एनी हाउ आम प्रथम जीवा नेचुरल। सो द नेचुरल मेथड ऑफ प्लांट मल्टीप्लिकेशन अकरिंग नेचुरली इन व्हिच ए सोमैटिक पार्ट ऑफ द प्लांट डिटैच फ्रॉम द बॉडी of the mother and develops into a new plant is called the natural vegetative propagation. ता माने एठी कौन होउची ना पेरेंट प्लांट गोटे रहिची से पेरेंट प्लांट रु कौन हैला ना सी जनरली पेरेंट प्लांट रु किछि डेवलप हो स्ट्रक्चर एवं सी डिटैच कि सेपरेट हो जिवो एवं जनरली एक्ट एज मदर प्लांट किंबा पेरेंट प्लांट आकार रे काम करिवो। तो ताकू आम कहबू कौन ना नेचुरल। तो तुम्हें जानी मे कि जून मास तुम कौन होना अदा लगा रज पूर्वर अदा लगे अदा से मैंने लंगल करेंगे लंगल कर सियार काटे सियार काटला माटी उच्चा करेंगे माटी उच्चा करापे अदा टिके लगे अदा लगेला तुम एरिया पर्टिकुलाली आम देखा अदा जनरली फेमस फॉर कोरापुट पटांगी गोटे एरिया रही तुम रही पर्टिकुलर कंधमाल अदा हलदी फेमस एवं ताको आम कहूँ ऑर्गेनिक्स से पत्र ढांकी देले वर्षा है ऑटोमेटिक गजा बाहरला माने दैट इज एक्सिलरी बर्ड। सो दैट इज ए प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तेणु ताको यदि नेचर रे छाड़ी देबा सेमतिया से मेंचा मेंचा बाहर आम यदि लगेबा ताले मध्य अधिका प्रोडक्शन हबो। सो द मेथड ऑफ आउ थरे कहि द मेथड ऑफ प्लांट मल्टीप्लिकेशन अकरिंग नेचुरली इन व्हिच ए सोमैटिक पार्ट ऑफ द प्लांट डिटैच फ्रॉम द बॉडी of the mother and develops into a new plant is called the natural vegetative propagation. तो वर्तमान सी केते टाइप रही पारे ना वेरी सिंपल that is possible by the roots, possible by the stems, possible by the leaves. तो किछि देखिथिबो तुमर आइडिया थिबो देखिबो गोटे बेल गछ किंबा गोटे शिशु गछ यदि हेइछि तार 50 फुट 100 फुट दूर रे कि 25 फुट दूर रे 15 फुट दूर रे देखिबो फेर आ गोटे बेल बाहर थिबो कहीं ना से माने जनरली चेररु मध्य नुआ बेल गछ बाहर शिशु गछर मध्य चेररु बाहर। तो ये सब जिनिस कौन ना बाय रूट। एवं आउ गोटे तुम जानी आमर गोटे डालिया फूल शीत दिने फुटे एवं डालिया फूल देखिए चारिआडे बड़ बड़ पार्क रे सब लगुच जस्ट दुर्गा पूजा परे परे से लगेबे। एवं फॉर योर काइंड इनफॉरमेशन डालियार कौन करती से माने ना चेर रखती चेर रखिला परे चेर काटिकी रखिला परे से गछ बाहर एवं जो गछ बाहरिला पर्टिकुलर ताको आमे कहूँ स्लिप्स ताको आगला स्लिप्स SLIPS स्लिप्स।
तो बर्तमान देखिबा ऑर्डिनरी रूट्स ऑफ डालबेरिया शिशु शिशु गछ पपुलस पिजुली गुआभा मुराया मुराया है तुम पर्टिकुलरली कौटा ना करी लीफ कि भुरसुंगा पत्र etc etc can develop advantageous buds which grow to form new plants. So root tubers with advantageous buds occur in sweet potato कंदमूल रे मध्य देखा जाउची टापोइका एटा केरला रे देखा जाए गोटे मूल टाइप रो खाद्य याम खंबाळू डालिया आस्पारागस सतमूली ए सब जगह रे मध्य बर्ड फॉर्मेशन हुए when placed in the soil जेतले माटी रे हम ताको रखिबु the buds present on the roots grow into leaf shoots called as slips ता माने जेते बेले हम चेरटा को रखिबु माटी भितरे किबा ढांकी के रखिलु सेतिर छोट छोट पत्र बाहरिबा आरंभ करिवो एवं से स्ट्रक्चर को आमे कहबु कोन ना स्लिप्स SLIPS स्लिप्स तो ये है हमर बाय रूट्स बर्तन आमे जिबा बाय स्टेम्स तो बर्तमान आम चेर रु बाहरला बर्ड सीमित पिले जदि स्टेम रु बाहर किंबा सूट रु बाहर ताकू आम कहबू बर्ड्स फ्रॉम द स्टेम्स सो व्हाट इज स्टेम ना स्टेम इज द अपर पार्ट एबव ग्राउंड पार्ट इज द सूट ऑफ द स्टेम एंड लोअर पार्ट इज द रूट तो माटी तले जी रहा सी है चेर माटी ऊपर को जी आसला सी है स्टेम किंबा सूट तो ये स्टेम जीवा पूर्वर मु तुमको कहीदे किसी जगह देख बाउंस काटिला परे लगा जाए किंबा तुम्हें मैंने जानी गाँ गहल रे सबू कौन करें ना वर्षा दिन आसला पवन टिके मारी देथिबो सजना गछ भांगी जाइए सजना गछ भांगी गला परे से माने कौन करेंगे ना मोटा मोटा सजना डाल आनी पोतिबे एवं ऊपर जो भांगी जाइथिबो ता ऊपर गोबर नदी देबे एवं गोबर जो नदा होइथिबो से मॉइस्चर क्रिएट कला एवं सेतिरु बाहरला पत्र तापर तल जो वर्षा टिके झिपिझिपि होउथबो सेतिरु चेर बाहरला तो यही टाइप रो मध्य जनरली आम होउछु से जिनस आम देखिबा ऑल टाइप्स ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम स्ट्रक्चर लाइक सकर्स इट राइजम स्टोलन ऑफसेट सकर माने आसला कदली गछ सकर क्राइसेंथेमम सेबती सीला सकर राइजम है अदा कर्म है ओलुओ सारू ट्यूबर है पटाटो बल्ब पियाज फाइलोक्लेड सी आसला तुम अपुनसिया नागफेणी ऑफसेट पर्टिकुलर तुम आसीगला किए आइकर्निया बिलाती दल बलबिल आसला तुम पाइनएप्पल किंबा याम एमाने कौन हम ना दे आर हेल्पिंग इन वेजिटेटिव प्रोपागेशन इन ए नेचुरल मैनर सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स अवेलेबल प्रत्येक गोटे गोटे ओडिया एग्जांपल देली एवं सेमानंकर जो स्ट्रक्चर रही से मल्टीप्लाई करुच्ची बर्तमान मु देखी गोटे पाइनएप्पल कथा आम चिंता करवा पाइनएप्पल तुम्हें जानी जोटा को आम कहूँ सपुरी पणस किंबा किया पणस आम कहूँ एवं बालेश्वर साइड्रे कि मयूरभंज साइड्रे तुम्हें तो मयूरभंज भी अच्छ कि पिला तो से कहुच्छी अनारस एनिया सी कौन हम ना जी बहुत आम पाखे है पर्टिकुलर कोरापुट कंटाबांजी एपटे बहुत पाइनएप्पल होउची एवं पाइनएप्पल कौन करती लोक मैंने हार्वेस्ट कर पारती ना तो गचरे पाचिगला पर से पाइनएप्पल किया पणस कौन हम ना मटी आसिक लगिगला गछटी मटी जो लगिगला से मेंचाए गच बाहर ना पाइनएप्पल तो आनब तले उपर छोट छोट गच टाइप रही है से गुड़ा आम कहूँ बलबिल सो यही जिनस लिखा जाए ऑल टाइप्स ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम अंडरग्राउंड रही सकर्स राइजम कर्म ट्यूबर बल्ब फाइलोक्लेड ऑफसेट बलबिल are helping in vegetative propagation in natural manner then by leaves पत्र गुड़ा मध्य गछ बाहरुछि आमे माने देखिबो तुमे माने बेले बेले स्कूल ले पढुतला बेले क्यूरियोसिटी दृष्टि पाचिला अमर पई आनी कि खाता भितर रखिथिबो तो पाचिला अमर पई जदि खाता भितर रखिछ ताले कोन हबो पिले ना किछि दिन परे 6-7 दिन पर देखियो सेतिरु चेरो टाइप रो बाहरला एवं गछ बाहरिबो सो दीज आर द स्ट्रक्चर कॉल्ड एज पर्टिकुलरली एडवांटेजियस बर्ड एवं जो अमर पोई कहली ता ना हैला ब्रायोफाइलम आउ गोटे आमर अच्छे स्नेक प्लांट आम देखा ए गछ दी आम घरे रखा ताले स्नेक कि बाड़ी रखिले साप मैंने आसबे ना एवं से स्नेक प्लांटा सबुठ मजा जिनिस है से प्लांट को देखिए रखा जाए घरे एवं से माने पर्टिकुलरली दे आर अब्जर्विंग द मोर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से माने मध्य कार्बन डाइऑक्साइड अब्जर्व करती तो स्नेक प्लांट मध्य कौन हम ना लीफ भांगी गला परे सेतिर मध्य हेई परिबो तो से जिनस आम लिखीचु सम प्लांट्स डेवलप एडवांटेजियस बर्ड्स on their leaves which get detached and develop new plants
लीव्स ऑफ स्नेक प्लांट, कालांचो, ब्रायोफाइलम, एडिएंटम, बेगोनिया एक्सेट्रा develop buds when get injured, detached and placed on the moist soil. तो एमानकर जेतेबेले बाय चांस जोर वर्षा हे गला, पवन हे गला, टापर डाळ पड़ी गला, से पत्र उडा भांगी जीव, भांगी गला परे कोन हबो नेचुरली सेतुरु मध्ये गछ बाहरिबो। तो यार भेरी गुड एग्जांपल हमरला स्नेक प्लांट, ताको हमें कहूछु सेंसिवेरा बोटानिकल नेम एवं ब्रायोफाइलम कि अमरपई। तो से स्नेक प्लांट हिरो को बर्तमान आम देखा आउ टिके परे। तो एनी हाउ मु जहाँ कहली देख यहाँ पटाटर बर्ड जनरली दि जाइए, पटाटर ये टाइप बर्ड बाहर तुम जाच। एवं ये अदार चित्र, अदा देख बहुत सुस्थ सबल अच्छी। तो एनी हाउ से सब बाहर सब जंक्शन से बर्ड बाहर जंक्शन गुड़े। ये तुम कर्म, कर्म माने ग्लाडियोली गोटे गछ जोटा कि स्टिक गोटे लंबा लंबा स्टिक हो फूल फुटे शीत दिन दि जाए, देखिए न्यू इयर्स बेलू कि एक्समास बेलू लगे। तो ये ग्लाडियोल कर्म, ये जो हीरो कथा कहूली सी है ब्रायोफाइलम, किसी दिन पर देख गछ बाहर। एवं ये है चिन्हिच तुम्हें मन पकाओ बिलाती दल। तो तार जो कनेक्शन अच्छी दैट इज द ऑफसेट। तो एमाने देखियो बिलाती दल आम पोखर गोटे रखीदबा कि नदी में गोटे पड़गला, वर्षे दि वर्ष जीव देखिब मेंचा मेंचा होती थे, कहीं ना दे आर मल्टीप्लाई थ्रू सकर। तो ये देख एटा गोटे याम खंबाळु गछर गोटे गोड़ी टाइप रही कंचा ओडिया रे आम एपटे लांगुएज रे आम कहूँ आलू बातरा। तो आलू बातरा माने सी देखिबो गछरे माड़ी थिबो, सेतर गोल गोल हेकी बाहर थिबो एवं से गोल गुडा को आम कौन करबा नदी पोती दबा कि आपे गली पड़ला सेतिर मध्य गछ बाहरिबो। आको आम कहूँ पान आलू किंबा खंब आलू किंबा माटी आलू मध्य आम कहूँ। तो ये जानिच किया पणस सपुरी पणस ये जिनस तुमको कहूली बलबिल, ये बलबिल मध्य अटैच हो गले सी गछ बाहर। तो बलबिल बर्तमान अटैच हो देख साइड रे गछ बाहरुची एवं न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड। तो ये गुड़ा मध्य आमर जनरली रही एवं एगुड़ा मध्य नेचुरल प्रोसेस रे होची। तो यू शुड नो अबाउट दिस एवं एमानकु मते लागुची तुम किछि एमानकु चिन्हिल एवं तुमर फ्यूचर रे प्रैक्टिकल लाइफ रे तुम यूज करि पारिबो। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू।